Okay, so we'll start with today's session, Mechanical Properties of Solids from 11th Physics, Part 3. We are solving the questions from NCERT at fingertips. The previous question that we solved in the yesterday's lecture was that for, I think, कौन सा question कल हमने solve किया था? Last question that we solved was question number 48 मेरे ख्याल से, isn't it? Sequentially हम question number 48 तक पहुंच चुके थे और अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Now today I'll start with the star problems. इसके जो star problems है या कुछ derivation types, standard derivation types of problems है, वो मैं आज शुरू करूँगा. आज के lecture में I'll start with that today. Okay? So let us start with the today's session now. तो star problem में the first star problem which I'll go for is question number 9. Question number 9. एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 जो है वहां पे चलते हैं. This one. This is the first star problem. चलिए क्या दिया है यहाँ पे. तो बिफोर आई स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन मुझे आपको बताना है द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल. नो डाउट दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम. नोट, आई विल टॉक अबाउट differential. Differential first. We know that the volume of cylinder, the volume of cylinder or wire, say for example, volume of cylinder or wire, it is given by V is equal to pi r square into L, pi r square into L, where r is the radius and L is the height of the cylinder या length of the wire. Correct? So volume is a function of radius as well as length. Volume is depending upon these two variables. Volume is depending upon these two variables. Is that okay? अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएटिंग. यहीं पर हम डिफरेंशियल देखने वाले हैं. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के हिसाब से वॉल्यूम कैसे चेंज होगा. तो वी नो दैट वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. द फर्स्ट वेरिएबल इज रेडियस एंड दूसरा वेरिएबल है लेंथ. सो टाइम के हिसाब से रेडियस, इस वायर को अगर हम खींचते हैं, इफ दिस वायर इज स्ट्रेच्ड as we have seen in the yesterday's lecture, कल के लेक्चर में हमने देखा कि भाई उसको if we apply some force over there, तो this wire will get subjected to the the force, and उसकी वजह से उसका लेंथ भी चेंज होगा और इसका, इस वजह से उस वायर का लेंथ भी चेंज होगा एज वेल एज उसका डायमीटर या रेडियस भी चेंज होगा. वी नो दिस with respect to time. So differentiating this with respect to time, what do we get there? I'll write this as dv by dt, differentiation with respect to time t. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे uv रूल अप्लाई करना पड़ेगा. आई होप यू ऑल रिमेम्बर u into v रूल. pi is a constant, take this pi out. pi को मैंने बाहर निकाल दिया, and it is d by dt of r square into L, of r square into L. ठीक है. Now these are the two variables, u and v. Now what I am going to do is called as chain rule, जो आपको पता नहीं है और मैं आपको explain करने जा रहा हूँ. Chain rule. Chain rule is a mathematical adjustment. क्या adjustment है मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ. So please understand this now. Please check here. ठीक है. तो I'll write this as dv by dt is equal to pi is a constant, no doubt about that. Now uv का formula क्या होता है? What is the derivative of u into v? First function as it is, r square into derivative of L with respect to t.
plus second function as it is L into derivative d by dt of r square, d by dt of r square. वेल ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? यहाँ पर इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा? प्लीज चेक हियर. तो व्हाट आई विल डू हियर इज फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल राइट दिस एज डी बाई डी टी. देखिए यहाँ पर मैथमेटिकल एडजस्टमेंट मैं कैसे कर रहा हूँ, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर. लेकिन ये तो टी का फंक्शन नहीं है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ आर. तो मैं क्या करूंगा, आर उधार लूंगा, डी आर, और यहाँ पर भी होगा डी आर एंड डी आर. इज दिस ओके? डी आर एंड डी आर मतलब डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. नाउ इसका डेरिवेटिव डी बाई डी आर ऑफ आर स्क्वायर, दिस इज वेरी मच लुकिंग लाइक डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. और ये तो आपको पता है एक्स रेस टू एन, इट इज 2 एक्स रेस टू 2 माइनस 1 मतलब 1. तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? कैन यू प्लीज टेल मी, प्लीज आंसर द क्वेश्चंस. आप लोग पिक्चर की तरह उसको मत देखिए, प्लीज आंसर करिए. सो दिस विल बिकम dv by dt is equal to pi into, please answer it, it is r square into dl by dt plus L times dr by dt into d by dr of r square is 2r. क्या ये आप लोगों को समझ में आ गया? दिस इज द डेरिवेटिव. यहाँ तक जो मैंने लिखा है इसको कहते हैं डेरिवेटिव. यहाँ पर तक मैंने जो लिखा है ये है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का ये चेन रूल है जो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में देखने वाले हैं. 12th स्टैंडर्ड में आप लोग ये चेन रूल देखने वाले हैं. इसका बेसिक मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया. अभी तो आप 12th में जा ही चुके हो. अब मैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट स्टेप ले लूंगा, दैट आई विल कैंसल दिस डी आर थ्रू आउट. ऐसा डेरिवेटिव्स में हम कैंसिल नहीं कर सकते, बट फॉर राइटिंग द डिफरेंशियल, फॉर राइटिंग the differentials, I will cancel this differentials, I will cancel dt throughout, cancel this dt throughout. ये throughout मैंने कैंसिल कर दिया. तो भाई क्या बचेगा वहां पर, उसको कहते हैं डिफरेंशियल ऑफ v. सो व्हाट इज dv इज इक्वल टू, dv इज इक्वल टू पाई विल बी एज इट इज r स्क्वायर इंटू dl प्लस पाई l 2r into dr. ये बचा, आई जस्ट ओपन दिस ब्रैकेट. इसे कहते हैं राइटिंग द डिफरेंशियल. भाई ये डिफरेंशियल हम क्यों लिख रहे हैं? डिफरेंशियल हम इसलिए लिख रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ की बात करनी पड़े, चेंज इन द वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम ऐसा होता है, या फिर दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट एरर इन द वॉल्यूम. और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम. तो इसलिए मैंने ये लिखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2. अगर ये इक्वेशन 2 है तो व्हाट इज इक्वेशन 1? इक्वेशन 1 सेज v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एल. ये है इक्वेशन 1. तो यहाँ पर dv अपॉन v मुझे चाहिए, सो आई विल से इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. सो दैट विल गिव मी dv अपॉन v इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए, दिस विल बी गिविंग मी पाई आर स्क्वायर dl, पाई आर स्क्वायर dl. एक मिनट, मैं ये डिवीजन बाद में देख लूंगा पहले. तो अब देखिए एक बात, मैं दोबारा इस वायर के ऊपर चला जाता हूँ. आई विल गो बैक टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वायर. ये वायर है, इसको खींचा है यहाँ पे. व्हेन दिस वायर इज स्ट्रेच्ड बाय द फोर्स, तो इज देयर एनी चेंज इन इट्स वॉल्यूम व्हेन वी आर पुलिंग दिस वायर? जैसे कि मैंने आपको उस रबर बैंड का एग्जांपल बताया था कि फिर रबर बैंड को जब खींचते हैं तो उसका लेंथ बढ़ता है, इस वायर का भी लेंथ बढ़ेगा एंड डायमीटर कम होगा. Diameter will, radius will get reduced. So length is increased at the cost of radius. In short, are we adding some material to this wire, or are we removing any material from the wire? The answer is no. That means since there is no change in the volume of the wire, since there is no change in the volume of the wire, in the volume of the wire, wire के volume में कोई change नहीं है of the wire, and this dv is nothing but the change in the volume of the wire. Therefore I would say that dv is equal to 0.
मतलब ये जो भी कुछ मैंने लिखा है, क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर, चलिए पाई को कॉमन ही रखिए, पाई इंटू ब्रैकेट आर स्क्वायर डी एल प्लस एल इंटू टू आर इंटू डी आर इज इक्वल टू जीरो। समझे, ये जीरो है। नाउ पाई को डिवाइड कीजिएगा, जीरो अपॉन पाई इज जीरो, तो क्या मिल जाएगा मुझे, और ये जो सब कुछ है वो मैं उस तरफ ट्रांसफर करूंगा, तो दिस विल गिव मी आर स्क्वायर इंटू डी एल इज इक्वल टू माइनस एल टू आर इंटू डी आर, ये बन जाएगा। नाउ आई कैंसल दिस आर यहाँ से, इस एल को इधर लेके आओ और आर को उधर लेके जाओ, so what is this going to give me, this will give me dl upon l is equal to minus 2 times dr upon r, dl upon l is equal to minus 2 times dr upon r, so that will be nothing but ये minus 2 इधर आएगा, so this will become minus half is equal to dr upon r divided by dl upon l। अगर आपको याद होगा तो this is nothing but the lateral strain, dr upon r is called as the lateral strain, this numerator is nothing but the lateral strain and the denominator is nothing but longitudinal strain, change in the length upon original length, change in the radius upon original radius, this is called as linear along the length strain, या फिर इसे हम longitudinal strain भी कहते हैं, longitudinal strain। Can anybody tell me ये ratio of lateral strain to linear strain क्या होता है? Can anybody tell me what is this ratio? Poisson's ratio. Correct, absolutely correct. So it means that this is the Poisson's ratio. This is called as Poisson's ratio. Poisson's ratio, which sometimes it is denoted by mu, या कभी उसको सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, and that is equal to minus half, meaning it is equal to minus 0.5. Is that clear? Minus half or minus 0.5. When is this case? When there is no change in the volume. Is this clear to all? The volume change नहीं होता। अच्छा, कई बार ये माइनस साइन नहीं लिखते, सिर्फ उसको नेगेटिव साइन ना देते हुए सिर्फ 0.5 लिखते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में किया है। So now let us read the question. If the volume of the wire remains constant, this is very important statement here. This is very important statement. The volume of the wire remains constant. When subjected to tensile stress, the value of Poisson's ratio of the material is 0.5. The most precise answer will be minus 0.5. Is this clear? And this is the star problem. यहाँ पर हमने use of differential किया हुआ है। Any doubts about this explanation? Please tell me. इसमें किसी को doubts है? बताइए please. In the meantime, I'll go for the next question. तो आज मैं सारे स्टार वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। I'll try to solve all the star questions. ठीक है, चलिए। Have I solved question number 43? I would like to know. Have I solved question number 43? Please answer. Previous देखकर चेक करके आप बताइए मुझे। 43 सॉल्व किया हुआ है, करेक्ट। आई हैव ऑलरेडी सॉल्व। चलिए कोई नहीं, आई विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 44, 46, 47, ये सब स्टार क्वेश्चंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। लेट मी गो टू क्वेश्चन नंबर 44। इसमें किसी को कुछ डाउट्स है भाई? इसमें किसी को कुछ डाउट्स है? नहीं? ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 44 नाउ। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। अगेन दिस इज अ स्टार क्वेश्चन। अगर एक्चुअली ये तो एक डेरिवेशन है, तो कौन कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम में डेरिवेशंस नहीं पूछते? ये देखो बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन पूछा गया है यहाँ पे। आई एक्सप्लेन यू दिस डेरिवेशन। डेरिवेशन मतलब उसमें आगे भी कुछ चेंज करके उन्होंने फिर पूछा है, तो यू कैन नॉट रिमेम्बर द डेरिवेशन, आपको ये प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज अगेन अ स्टार क्वेश्चन, स्टार प्रॉब्लम। इज दिस ओके? चलिए देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। इट सेज अ यूनिफॉर्म रॉड, a uniform rod of mass m, length l, area of cross section a is rotated about an axis passing through one of its ends.
perpendicular to its length with a constant angular velocity omega in the horizontal plane if y is the Young's modulus of the material of the rod, the increase in its length due to the rotation of the rod is. कुछ समझ में आ गया आपको? आई एम श्योर शायद नहीं आ गया होगा. लेट मी एक्सप्लेन यू. एक रॉड है वहां पे. क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि भाई वहां पर एक रॉड है, इस तरह का रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को घुमाया है वर्टिकली. इट्स रोटेटेड इन द वर्टिकल प्लेन ऐसे, ठीक है. द लेंथ ऑफ द रॉड इज एल. एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड और उसको घुमाया है विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. m is the mass of the rod. m is the mass of the rod, ठीक है. तो वी हैव टू फाइंड आउट इसके रोटेशन की वजह से वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तैयार हो जाएगा. देयर विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ इट, isn't it? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा व्हिच इज अवे फ्रॉम द सेंटर. सर्कुलर मोशन अगर आपको याद होगा, एफ सेंट्रीफ्यूगल. तो इसकी वजह से द रॉड इज सब्जेक्टेड टू द टेंशन. तो व्हाट विल बी द चेंज इन द लेंथ ड्यू टू रोटेशन ऑफ द रॉड, ये हमको पूछा गया है. क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल कंसीडर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस रॉड. छोटा सा इस रॉड का पार्ट हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, यहाँ पे, ठीक है. दिस रॉड, दिस पार्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. सेंटर से ये जो है दिस इज एट ए डिस्टेंस x, ठीक है. लेट्स से दैट लेट mu is equal to mass per unit length. Mass per unit length. Mass per unit length मतलब total mass upon total length is mu, ठीक है. और अब हम ये सोचते हैं कि भाई व्हाट इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट dm. ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट का मास होगा dm. दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट. दिस इज अ वेरी स्मॉल एलिमेंट. और इस एलिमेंट का लंबाई कितना होगा? इस एलिमेंट का लंबाई है यहाँ से यहाँ तक. तो दैट लेंथ इज नथिंग बट dx. दैट लेंथ इज नथिंग बट dx. इज दैट ओके? तो देखिए अगर लेंथ m है, सॉरी लेंथ अगर l है, लेंथ l है तो मास m है. अगर इसका लेंथ dx होगा तो उसका मास कितना होगा? dm. एंड दिस dm इज इक्वल टू दिस इनटू दिस अपॉन दैट. मतलब इट इज dx into m upon l. dx into m upon l. और in short I'll call this as mu times dx. Is this clear to all? Is this okay? Is that fine? ठीक है. अब देखिए ये छोटे से हिस्सा जो है इसका मास m है और वो कितने डिस्टेंस पर है, और ये जो है वो कितना, it is rotating actually. This is basically performing the circular motion. ये circular motion perform कर रहा है and इस circular motion का radius है x. So what is the force acting on this? इसके ऊपर force जो होगा वो centripetal force कितना होगा? centripetal force on this force is acting on x length of the rod, on the rod of length x, is given by I'll call this force as df, and that is equal to m mass into radius, that is x, isn't it? dm होगा actually. This is the mass here, dm into, because the force F force is given by mr omega square. The centrifugal force is given by mr omega square. ये वाला formula मैं apply कर रहा हूँ. So mass of this part is dm and it is at what radius? Radius of this is x and into omega square.
Now let me just substitute here. dm is equal to mu times dx. So this will become mu times dx into x into omega square. अब ये मैं पूरे रॉड के लिए अगर मैं अप्लाई कर दूं तो दिस इज गोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू दिस इज गोइंग फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l. सो टोटल फोर्स जो होगा यहाँ पर एक्ट करने वाला टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is given by is equal to F is equal to integration of df, and that is equal to integration of mu omega square x into dx, and this x is going from 0 to x is equal to L. So this force F is equal to mu into omega square is a constant, and this will become x square upon 2, and this is going from x is equal to 0 to x is equal to L. So that is equal to mu omega square, ये lower limit और upper limit है, L square upon 2. This is the force acting there. This is the force acting. Is that okay? अगर मैं इसको x is equal to L, x is equal to x से लेकर भी ले सकता हूँ. I can take it from x is equal to x से ही ले लेता हूँ, बाद में मैं x is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है. So I'll take it from x to L. तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ इसमें, तो this will be mu omega square upon 2, and this will go from upper limit x के जगह पर L, lower limit में x के जगह पर x. ये मैंने कर दिया यहाँ पे. This is the force, because this is not my final answer. मुझे चाहिए actually वहाँ पर what is the increase in the length. Now as per Young's modulus, y is equal to f L upon a L. इस तरह से होता है f L upon a L. तो ये f है, it's a function of x, वो x के ऊपर डिपेंड करेगा, isn't it? I want to find out the extension. So extension L is equal to FL upon AY. तो इसमें L is a constant, A is a constant, Y is a constant. सिर्फ F है वो चेंज हो रहा है, isn't it? F है वो चेंज हो रहा है, isn't it? क्योंकि अगर हम इतने रॉड का बात करेंगे तो द एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल, लेकिन टोटल एक्सटेंशन मुझे यहाँ से लेकर वहां तक जो एक्सटेंशन है, बिकॉज यहाँ पर ये जो एक्सटेंशन मैं फाइंड आउट करूंगा, इफ आई सब्स्टिट्यूट फॉर एफ के लिए अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 into L square minus x square. So this is the extension of what length? Of only this much length, x length. लेकिन मुझे x is equal to 0 से वहां तक लेके जाना है, isn't it? Isn't it? Hello, are you understanding what I'm saying there? Hello, are you understanding what I'm saying there? Hello, FL. एक सेकंड है, Young's modulus is equal to F. एक मिनट है, मुझे यहाँ पर आपको कुछ और चीजें एक्सप्लेन करनी है. चलिए देखते हैं यहाँ पे मैं और कुछ आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. प्लीज हैव अ लुक एट दिस. करना पड़ेगा थोड़ा सा. देखिए ये जो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, वेल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला FL upon L, दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड दिस इज द चेंज इन द डायमेंशन. तो एक्चुअल जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो ये है, लेकिन ये फॉर्मूला ये है वो फॉर्मूला जो हम यहाँ पर यूज करेंगे. लेकिन ये फॉर्मूला जब यहाँ पर यूज किया जाएगा, व्हेन वी विल यूज दिस फॉर्मूला हियर, तो लेट अस हैव अ लिटिल मॉडिफिकेशन देयर. वहां पर कुछ मॉडिफिकेशन होगा. वेल क्या मॉडिफिकेशन होगा? लेट्स हैव अ लुक एट दिस. लेट्स हैव अ लुक एट दिस कि क्या मॉडिफिकेशन होगा इस फॉर्मूले के अंदर बिकॉज ऑफ दिस. इसकी वजह से क्या मॉडिफिकेशन होगा? देखिए फोर्स यहाँ पर F है. दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस मच लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है. लेकिन ये है रेडियस, लेकिन लेंथ ऑफ द रॉड विच इज सब्जेक्टेड हियर, मास ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड, इट इज ओनली दिस dx लेंथ. मतलब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द रॉड है वो dx होगा और फोर्स ये होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड y इज फाइन, इजंट इट? सो जो इलोंगेशन होगा, बिकॉज ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो इतने रॉड के ऊपर हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? कि वी आर कंसीडरिंग द रॉड ऑफ लेंथ x, और यहाँ पर इस रॉड की वजह, इस रॉड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन मास ऑफ द रॉड जो है उसका लेंथ हम dx कंसीडर कर रहे हैं. दिस इज द dx पार्ट ऑफ द रॉड.
So whatever extension is happening, it is happening for this much part. Are you understanding what I'm saying there? Please tell me. So Young's modulus जो है, it is given by F upon A divided by L upon L. मतलब y is equal to F, फोर्स जो होगा वो ये होगा, बराबर है. तो फोर्स इज दिस, एरिया भी पता है, लेकिन चेंज इन द डायमेंशन जो होगा, उस चेंज इन द डायमेंशन के लिए मुझे यहाँ पर कुछ और चीज, यहाँ पर और कुछ ये करना पड़ेगा. सो चेंज इन द डायमेंशन इज dl. आई विल से dl इज द चेंज इन द डायमेंशन फॉर dx लेंथ. dl is the change in the dimension. Are you understanding what I'm trying to say here? dl is change in the dimension, change in length of rod, and this rod का length है dx. मतलब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिस इज अवर l एंड लेंथ जो है वो dx है, समझे. तो ये फॉर्मूला जब इधर अप्लाई किया जाएगा तो वो क्या बनेगा, प्लीज टेल मी. दिस विल गिव मी dl इज इक्वल टू f के जगह पर आएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. l के जगह पर आएगा सिंपली dx डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पर तो एरिया आएगा और y के जगह पर y आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस इज द चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड ऑफ ओनली दिस मच लेंथ. लेकिन ये मुझे अप्लाई करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l के लिए. सो टोटल चेंज इन द लेंथ, total change in the length is found out by integration. Total change in the length, the total change in the length which is equal to L will become the integration of dl, and that is going from x is equal to 0 से लेकर x is equal to L तक. तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. So this will become integration of mu omega square upon 2, this is L square minus x square into dx, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है a इंटू वाई. चलिए इसमें से जो कांस्टेंट्स है उसको बाहर निकाल दीजिएगा. तो कांस्टेंट म्यू ओमेगा स्क्वायर 2ay, ये सब कांस्टेंट्स है. म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay, ये सब कांस्टेंट्स बाहर आएंगे. इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l. इट इज l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx. गौर से देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला स्टेप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आपको ये जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करके रखें. सो दैट विल गिव मी व्हाट, नाउ दैट इज इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay. ठीक है. एल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एल स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0 टू एक्स इज इक्वल टू एल. चलिए दोबारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. सो दिस विल बिकम म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay ब्रैकेट के अंदर पहले मैं अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर x इज इक्वल टू l. सो दिस विल बिकम l क्यूब माइनस l क्यूब ऑन 3, लोअर लिमिट में x इज इक्वल टू 0 तो सब चला जाएगा 3 माइनस l. तो यह आएगा म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2ay and this will become 3 minus this is 2/3 of l cube. This 2 gets cancelled. So what will be the final answer here? The total change in the length is given by mu omega square l cube upon 3ay upon 3ay. Is this clear to you all? And is this matching with any of the answers? Mu क्या है by the way? Mu हमने लिखा था mu is equal to total mass upon total length. Let me substitute for mu, क्योंकि mu को तो हमने introduce किया था. So when I'll substitute there, this will become m upon l omega square l cube upon 3ay. Well, इसमें से एक l cancel हो जाएगा and this will become m l omega square upon 3ay. Is it matching with any of the answers? Any of the options rather? C is the answer here. Please check. C is the answer. Now एक बात मैं आपको बता दूं, ये स्टार प्रॉब्लम है, नो डाउट अबाउट दैट. इट इज स्टार प्रॉब्लम, लेकिन इसमें स्टार वाला स्टेप कौन सा है मैं दोबारा आपको एक बार बता दूं. विच इज द स्टार स्टेप हियर. देखिए पहले हमने क्या किया यहाँ पे, पहले तो हमने इस रॉड का छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया. प्लीज हैव अ लुक एट दिस वन.
ये जो रॉड है, इस रॉड का छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया, दिस पार्ट ऑफ द रॉड विच इज एट अ डिस्टेंस x, तो ये इतना ही हिस्सा गोल गोल घूमेगा, याद रखिए, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये इतना ही रॉड का हिस्सा है वो जो गोल 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 घूमेगा, ठीक है, ऐसा हम कंसिडर करें। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और वो रॉड इस अ, यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स इज एक्टिंग ओवर देयर, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से देयर विल बी सम फोर्स एक्टिंग, बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी सम फोर्स एक्टिंग, और वो फोर्स इस पार्ट को थोड़ा सा लंबाई उसका चेंज हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्सप्लेन यू हियर? तो यहाँ पर जब हम नीचे अप्लाई करते हैं इस चीज को, व्हेन वी अप्लाई इट ओवर हियर, क्योंकि हमने उसका चेंज इन द टोटल फोर्स पहले हमने फाइंड आउट किया, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि हमने टोटल फोर्स फाइंड आउट किया। देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला फॉर यंग्स मॉड्यूलस आई सेड कि चेंज इन द लेंथ इज गिवन बाय दिस, बट दिस चेंज इन द लेंथ फॉर टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। लेकिन यहाँ का जो रॉड का लेंथ है, यहाँ का जो रॉड का लेंथ है वो इतना ही रॉड का लेंथ है, दिस इज व्हाट इज दिस लेंथ dx, और उसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स है, ये रहा, ये वाला फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से इस रॉड का लेंथ थोड़ा सा चेंज होगा। कितना चेंज होगा भाई? ये जो चेंज इन द लेंथ है जिसको मैं बोलूंगा dl, और ये है ओरिजिनल लेंथ, क्योंकि इसके लिए हम अप्लाई करें, और ये पूरा इफेक्ट फिर मैं पूरे के पूरे रॉड को अप्लाई करूंगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन टेक्निक्स हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट हम छोटे से पार्ट के लिए अप्लाई करेंगे, फिर पूरे पार्ट के लिए अप्लाई करने के लिए वी विल गो फॉर द इंटीग्रेशन टेक्निक्स, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं, तो इन दिस केस आई अप्लाइड दिस, तो चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इज, जो जिसको हम फॉर्मूले में स्मॉल एल कह रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय dl, एंड लेंथ ऑफ द रॉड जिसको फॉर्मूले में हम कैपिटल L कह रहे हैं, दैट इज डिनोटेड बाय dx, और फिर वो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया, दिस इज dl, फोर्स तो ये मैंने फाइंड आउट किया था वो लिखा, लेंथ इज dx एंड अपॉन a इंटू आई, तो इस वजह से ये स्टार प्रॉब्लम है, और इसको फिर मैंने इंटीग्रेट किया। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? प्लीज स्पीक इट आउट, प्लीज से इट आउट लाउडली, हेलो, प्लीज से इट आउट। तो दिस वाज अ डेफिनेटली अ स्टार क्वेश्चन, इसी टाइप का और एक दो क्वेश्चन है आगे, जो कि दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन, एक्चुअली ये एक डेरिवेशन है, आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह याद नहीं रखना, बट एक्चुअली आपको डेरिवेशन ही लर्न करना पड़ेगा ये, या देखना पड़ेगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 46 ये रहा, इसी तरह का है ये। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, देखिए क्या दिया है यहाँ पे, a wire of length L has a linear mass density mu, linear mass density, linear mass density क्या होता है जी? It is linear mass density mu, मास का डेंसिटी, मतलब mu is equal to total mass upon total length, that is linear mass density, ठीक है। And area of cross section A, the Young's modulus is y suspended vertically from rigid support, the extension produced in the wire due to its own weight। तो देखिए ये जो वायर है, तो वायर के खुद के वेट की वजह से उसका क्या लेंथ होगा, क्या एक्सटेंशन होगा, ये हमें वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम वंस अगेन एज आई टोल्ड यू। तो इसके लिए मैं पहला वाला जो प्रॉब्लम है उसका ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं। well I consider here wire, तो
ये भाई एक वायर का, दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ इट। फिर यहाँ पे वायर, ठीक है। नाउ व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑफ द वायर एंड वेयर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर दिस आई से आई कंसिडर द पार्ट ऑफ द वायर। इसके लिए मैं वायर का एक पार्ट कंसिडर करूंगा फ्रॉम इट्स बॉटम। टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज एल, लेकिन उसके बॉटम से एक्स दूरी पर, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर आई कंसिडर एन एलिमेंट ऑफ द वायर। इस वायर का मैं एक एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर। देखिए अब जब एक्स कंसिडर करते हैं तो एक्स के साथ आएगा dx, तो अगर ये है x, तो उस पार्ट या एलिमेंट ऑफ द वायर का लेंथ कितना होगा, dx, ठीक है। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंटल वायर, डिस्टेंस ऑफ दिस एलिमेंटल वायर फ्रॉम द बॉटम। समझ में आ गया, ऐसा एक वायर हमने कंसिडर किया है। ऑलराइट, सो कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट, ऐसा राइट हियर, कंसिडर a small element of wire, small element of wire at a distance x from the bottom, at a distance x from the bottom and of length dx. So dx is the length of the element, जैसे हमने previous question में किया था उसी तरह से. So we are considering only this much part of the wire, very small portion of the wire. Okay, so tension at a distance x from the lower end, मतलब ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को मैं A बोलूंगा, therefore what is the tension, टेंशन बोलो या फोर्स बोलो, टेंशन या फिर फोर्स एट ए, मतलब इतने लेंथ की वजह से, ऊपर का छोड़ दीजिएगा, इतने लेंथ की वजह से इसका जो कुछ वजन होगा वो इस एलिमेंट के ऊपर एक्ट करेगा। सो लेट्स आई जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम हियर। इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि भाई दिस लेंथ इज dx, दिस लेंथ इज dx, ठीक है। और यहाँ पर जो खिंचाव है, यहाँ पर जो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्स है वो कितना होगा जी, what is the downward acting force over here, what is the force acting on this, this force I'll call this as df is equal to weight of this length of the wire, weight of wire of length x, of length x, ये जो x length of the wire है उसका weight। चलिए मैं फाइंड आउट करता हूँ। अब अगर देखिए लेंथ अगर l है तो मास कितना होता है जी, m, लेंथ अगर l है तो मास इज m, लेंथ एंड मास। तो लेंथ अगर x होगा, लेंथ अगर x होगा तो मास कितना होगा, म्यू जी dx, तो मास कितना होगा उसका, m होगा। व्हाट इज दिस मास, m, इट इज नथिंग बट x इनटू m अपॉन l। लेकिन m अपॉन l हमको ऑलरेडी पता है, दिस इज द लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम मास पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। मतलब 1 मीटर वायर का मास कितना होगा, म्यू, 2 मीटर का 2 म्यू, 3 मीटर का 3 म्यू, एक्स मीटर का एक्स म्यू। तो हम इसको म्यू एक्स भी कह सकते हैं, एक्स इंटू म्यू। मतलब इतना जो वायर है उसका मास कितना हो जाएगा, इतने वायर का मास हो जाएगा म्यू इंटू एक्स, दिस इज मास। तो वेट कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वायर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द वायर, the weight of this wire is equal to, this question number 46 है ना रे। So what will be the weight of this, weight of this wire is given by, चलिए बताइए मुझे क्या आएगा इस वायर का वेट, वेट ऑफ द वायर ऑफ लेंथ x। तो इसका जब मैंने मास बोला है कि म्यू इंटू एक्स, तो उसका वेट कितना हो जाएगा, वेट विल बी म्यू एक्स जी, एम जी बोलते हैं ना उसको, तो म्यू इंटू एक्स इंटू जी, दिस इज द वेट ऑफ द वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल, ठीक है।
समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया उसका वेट, वेट भी लिखा मैंने, दिस इज द फोर्स। सो व्हाट इज द टेंशन एट दिस फेस, यहाँ का जो टेंशन है, दिस टेंशन, दिस इज पॉइंट ए ना, ये रहा पॉइंट ए, मैंने यहाँ से यहाँ दिखा दिया। ओके, ठीक है। सो टेंशन विल बी नथिंग बट डी एफ, एंड दैट इज नथिंग बट म्यू एक्स इंटू जी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको एक्सप्लेन किया। इज दैट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस? ठीक है। Now we know the Young's modulus का formula. What is the formula for inverse? Y is equal to stress, that is force upon area upon strain, that is L upon capital. ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मुझे इस क्वेश्चन के हिसाब से अब मॉडिफाई करना है या चेंज करना है। I have to write this. So what will be this force? What is the force here? Then we'll say इस फोर्स की वजह से इसका जो इंक्रीज इन द लेंथ है वो मैं कहता हूँ, लेट अस से द इंक्रीज इन द लेंथ, यहाँ पे उसका जो इंक्रीज इन द लेंथ है वो कितना होगा, ऐसा मान के चलते हैं कि दिस इज द इंक्रीज इन द लेंथ, दिस इज dl, dl is the increase in the length, I'll say dl is increase in the length of wire of length dx due to force df, that is weight of the wire of length x। देखिए यहाँ पे इस वायर का जो वेट होगा वो यहाँ पर एक्ट करेगा, मतलब इतने जो एलिमेंट ऑफ द वायर है उसको वो कितना खींच रहा है, डीएल अमाउंट से। सो दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो और ये है ओरिजिनल लेंथ। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए, फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे उसको सब्स्टिट्यूट करना है तो फोर्स क्या है, डीएफ है। एरिया क्या है, एरिया तो सेम ही रहेगा अपॉन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ इज दिस इज द चेंज इन द लेंथ जिसको मैं dl कह रहा हूँ, एंड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ इज दिस dx, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग दिस यंग्स मॉड्यूलस फॉर दिस मच लेंथ ऑफ द वायर ओनली। तो ये उसका लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ, और यह है चेंज इन द लेंथ, तो दैट इज dl अपॉन dx। और बाद में ये पूरा इफेक्ट मैं अप्लाई करूंगा पूरे वायर के लिए विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, एज सिंपल एज दैट। So this is going to be df, df I have already calculated, it is mu xg, और ये dx भी ऊपर चला जाएगा into dx divided by a is here and this is dl, this is y। तो मुझे जो है what is the change in length चाहिए, therefore change in the length is equal to dl is equal to mu g x dx divided by a into y, but this is change in the length for dx part of wire. For total wire I'll have to integrate this effect, the change in the length for total wire, change in the length for total wire। तो ये जो भी कुछ मैंने लिखा है उसको मुझे L बोलूंगा, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ dl, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्योंकि इस वायर को मैं कंसिडर करूंगा छोटे 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 हिस्सों में। I'll consider this wire is divided into small parts each of length dx, और ये जो है इन सबको सबका जो ऐड करूंगा, जो चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस पार्ट दिस पार्ट, मतलब इन शॉर्ट मैं इस वायर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, और हर एक एलिमेंट ऑफ वायर का जो चेंज इन द लेंथ है वो मैं ऐड करूंगा। नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू इनफिनिटली मेनी पार्ट्स, तो इसलिए इस टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ ऑल दिस वायर्स, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दैट आई विल हैव टू इंटीग्रेट दिस टोटल थिंग। तो टोटल इफेक्ट के लिए मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा, दैट मींस दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड म्यू जी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई, एंड दिस इज टू बी डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक करना पड़ेगा।
Now here I'll take this mu g upon ay common ले लूंगा मैं, and this is integration of simply x into dx. Sorry, x square मैंने लिख दिया, x into dx है ये. So this will be simply integration of x into dx, which is going from x is equal to 0 to x is equal to L. That is equal to mu g upon ay x square upon 2, and this is going from 0 to L. That is equal to mu g upon a into y, and this is L square upon 2. Is this okay? So this is the total change in the length of the wire, and I think that's the answer. तो यहाँ आंसर फिर देखिए, mu g L square upon 2 ay. Mu g L square upon 2 ay. B is the answer there. This is again the derivation है ये. This problem is based on the derivation. ये एक standard derivation, standard proof ही इसको बोल सकते हैं, क्योंकि is this clear to all? अगला question is again a star problem, again a standard derivation. आप ये जो हमने दो क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं उसको आप डेरिवेशन ही बोल सकते हो. दीज आर नथिंग बट द स्टैंडर्ड डेरिवेशंस. ओके, तीन क्वेश्चन. तो ये जो क्वेश्चंस अभी मैंने सॉल्व किए हैं, 9, क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 44, 46 एंड 47, 44, 46 एंड 47, ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है भाई. दीज आर द स्टैंडर्ड डेरिवेशन. ओके, जैसे कल हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे वो नॉलेज बेस्ड थे, तो दीज आर द स्टैंडर्ड डेरिवेशंस. ये डेरिवेशंस विद प्रूफ, क्योंकि इसमें वो थोड़ा कभी कुछ चेंज भी कर सकते हैं, तो आपको इसको रिजल्ट भी याद नहीं. दीज आर द स्टैंडर्ड डेरिवेशन. आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज स्टैंडर्ड डेरिवेशंस. फिर आप बोलोगे कि नहीं, अगर ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन है तो वी विल मेमोराइज द रिजल्ट. अगर ऐसे आपके मन में आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दैट केस इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 46 अभी हमने सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 46 इज ओवर, बट इन द व्यू ऑफ दिस इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 47, तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 46 को मॉडिफाई किया है भाई. यहाँ पे दे हैव मॉडिफाइड द क्वेश्चन. तो अगर आप बोलते हो कि नहीं नहीं मैं इसको फॉर्मूला याद रखूंगा इसका, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 47 में उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किया है. इन द क्वेश्चन नंबर 46, देखिए गौर से यहाँ पे, वेरी इंटरेस्टिंग. इन द क्वेश्चन नंबर 46, if a mass m is hung at the free end of the wire, then the extension produced in the wire is. यहाँ पर जो whatever extension is happening, it is because of the weight of the wire, self weight of the wire, isn't it? यहाँ पर जो भी कुछ एक्सटेंशन दिया है, जो भी कुछ हो रहा है वहां पे, इट इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ वेट ऑफ द वायर. लेकिन उन्होंने बोला कि भाई सेल्फ वेट तो है ही है, बट सेल्फ वेट के अलावा और क्या है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ वेट दे से दैट देयर इज वन एडिशनल मास ऑल्सो. कितना मास है उस, यहाँ पर एक मास भी उन्होंने टंगा दिया है. दिस मास इज m. तो इट्स नॉट ओनली सेल्फ वेट हियर. तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर, व्हाट इज द फोर्स हियर, दिस फोर्स इज गिवन बाय, इसका मास कितना था, म्यू इनटू इसका मास, ये जो लेंथ ऑफ द वायर है उसका मास है म्यू इनटू एक्स, तो उसका वेट कितना होगा, म्यू एक्स जी प्लस प्लस ये वाला भी इसको नीचे खींच रहा है, सो प्लस एम जी. बाकी कुछ नहीं, सिर्फ जो डीएफ पार्ट है उसमें म्यू एक्स जी के साथ प्रीवियस जो हमने डेरिवेशन किया है, तो इस dx के साथ साथ या df जो है इस म्यू एक्स जी के साथ साथ प्लस एम जी आएगा बस. सो व्हाट इज द टेंशन एट दिस एंड ए, सो विल से द टेंशन और फोर्स एट ए इट इज इक्वल टू म्यू एक्स जी प्लस एम जी, ऐसा होगा. ठीक है. अब इस टेंशन की वजह से व्हाट विल बी द यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ, तो फॉर्मूला इज इक्वल टू स्ट्रेस दैट इज एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. दिस इज द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का मुझे अब फिट करना पड़ेगा इस सिचुएशन के लिए. सो व्हेन वी फिट दिस फॉर्मूला फॉर दिस सिचुएशन, तो यहाँ पर आएगा डी एफ, इजंट इट. यहाँ पर आएगा डी एफ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है,
और change in the length is dl and the original length is dx. चलिए इसको और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो दिस विल बिकम df into dx divided by a into dl, isn't it? मुझे चाहिए change in the length तो dl चाहिए, so this will give me dl is equal to df into dx divided by a into y. By the way, ये d क्यों होता है? D is the very small amount of the small length of the wire. This is a very small amount of force here. तो इसके लिए डिफरेंशियल मतलब छोटा जो होता है, छोटा वैल्यू होता है तो उसको d से, so change in the length, very small change in the length is given by what is df here? Here are df. Df is this is df. So that is nothing but mu xg plus mg into dx divided by ay. So this is the change in the length of the wire, of length change in the length of wire of length dx of length dx. So dx length का जो वायर है उसके अंदर ये चेंज इन द लेंथ, लेकिन पूरे वायर में क्या होगा? Therefore extension produced in the total wire, extension in total wire which is given by L, which is equal to integration of dl, and that is equal to integration of mu xg plus mg into dx divided by ay, and this is going from x is equal to 0 to x is equal to L. Let's integrate this now. तो इसमें से 1 upon ay तो बाहर आएगा being a constant, mu and g is a constant, x dx will become x square upon 2 plus mg is a constant और 1 dx का इंटीग्रल आएगा x, and this is going from x is equal to 0 to x is equal to L. चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. So this is given by 1 upon ay. When I substitute x is equal to 0 तो लोअर लिमिट में ये दोनों के दोनों पे चले जाएंगे, 0 हो जाएंगे, सिर्फ अपर मिड लिमिट में बचेगा. सो कि म्यू जी एल स्क्वायर अपॉन 2, म्यू जी एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम जी एल. ठीक है, इसमें से जी एल आई कैन टेक कॉमन हियर, आई विल टेक जी एल कॉमन. या आई थिंक दिस इज द आंसर. दिस इज नथिंग बट म्यू जी एल स्क्वायर प्लस एम जी एल होल थिंग डिवाइडेड बाय, इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दिस विल बिकम 2ay, सो 2mgl, एंड दैट ऑप्शन इज सी. देखिए दिस इज ऑप्शन सी. सो दिस इज अगेन अ डेरिवेशन एंड दिस इज अगेन अ स्टार प्रॉब्लम. तो ये स्टैंडर्ड डेरिवेशंस है जहां पर आपको इंटीग्रेशन टेक्निक्स यूज करने पड़ेंगे टू डिराइव द रिजल्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. हेलो, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. सो जो एमसीक्यूज होते हैं वो बेसिकली अलग अलग टाइप के होते हैं. The MCQs that we come across, they are of different types. जैसे कि कल से हम जो कुछ देख रहे हैं, some MCQs are of knowledge or information based, knowledge based या information based. ठीक है, कुछ MCQs जो होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं. some MCQs are of numerical based, मतलब क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं न्यूमेरिकल्स, और उसमें आपको फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. कुछ MCQs जो होते हैं वो होते हैं डेरिवेशन बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड, जो कि आज हम अभी जो देख रहे हैं. these are all the MCQs which are derivation based. ओके, और मोस्टली ये डेरिवेशन बेस्ड होते हैं, वो स्टार टाइप के होते हैं MCQs. दे आर द स्टार टाइप्स ऑफ MCQs. ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर, इस तरह के MCQs होते हैं, और इसके लिए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये होते हैं. these are very time consuming. ठीक है, न्यू टाइम कंज्यूमिंग. और नॉलेज बेस्ड जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो आपको पता है तो उसको टिक करना होता है बस. these are very straight forward, isn't it? और न्यूमेरिकल बेस्ड जो होते हैं उसमें आपको फॉर्मूला मालूम होना बहुत जरूरी होता है. न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं,
So these are the three types of MCQs that we come across, और आपको accordingly you should be prepared to answer these things. लेकिन ये जो मैंने आपको derivation based अभी MCQs बताए हैं, they are time consuming as well as star, लेकिन आप उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम अगर डिफिकल्ट होता है तो वो इस तरह के एमसीक्यूज के लिए ही जाते हैं, याद रखिए। 4 एमसीक्यूज भी ऐसे पूछ लिए तो अच्छा खासा हो जाता है, वहां पे डिफिकल्टी लेवल आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ इसके आगे के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे दोज आर मोस्टली न्यूमेरिकल बेस्ड, और मैं ही आपको ये रेकमेंड करता हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं ये आपको सेल्फ प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सेल्फ प्रिपेयर कैसे करेंगे आप, कि भाई जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है उसको याद रखिए, उसको खुद पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीड थियोरी पार्ट। थियोरी पार्ट कहाँ से पढ़ोगे, थियोरी पार्ट? थियोरी पार्ट एनसीईआरटी का जो है शुरुआत का इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन जो है उसमें पढ़ लीजिएगा, या फिर हमारा जो एचएससी का टेक्स्ट बुक है वेर एवर इट इज़ पॉसिबल। मतलब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू रीड द थियोरी पार्ट ऑफ दैट डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी, वो तो ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादातर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है, isn't it? Yeah, sometimes you have to refer the solution also. Solution में भी कई बार दिया जाता है इसका लिए। Is this clear to all? So let's go for the next question. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आज, 1 2 3 4 ही क्वेश्चन, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़े से। I'll go for the next question now, question number 48. Are you all ready with the formulae? फॉर्मूले से रेडी हो गए कि आप लोग? फॉर्मूले, हेल्प ऑफ फॉर्मूले यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। चलिए क्या दिया है यहाँ पे, फिफ्टीन केजी मास। देखिए 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक तो लेंथ ऑफ द वायर होता है, या तो फिर वो वॉल्यूमेट्रिक बॉल होता है, या फिर shear टेंजेंशियल फोर्स होता है। 15 kg mass is fastened to the end, of a steel wire of unstretched length. मास है 15 kg, end of the steel wire, unstretched length, capital L is equal to 1 meter, and is whirled in the vertical circle. Very interesting, vertical circle, vertical circle, vertical circle आपने कहाँ देखा था? It's whirled in the vertical circle. अगर आपको याद होगा, this we have seen in the conical pendulum. conical pendulum में मैंने ये explain किया था, conical pendulum with an angular velocity omega, with an angular velocity omega is equal to 2, अच्छा ओमेगा मतलब ओमेगा नहीं दिया, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड दिया है, दिस इज 2 revolutions per second. Revolutions per second is small n, and omega is equal to 2 pi n. So this is 4 pi radian per second. 4 pi radian per second. The cross section of the wire is 0.05 centimeter square. A is equal to 0.05 centimeter square. That is equal to 0.05 into 10 raised to minus 2 का square is minus 4 meter square. SI units में हो जाएगा 5 into 10 raised to minus 6 meter square. The elongation of the wire when the mass is at the lowest point of its path. Conical pendulum नहीं होगा ये, vertical VCM होगा, vertical circular motion at the lowest point of its path. तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने शायद कल सॉल्व किया था। हैव आई सॉल्व दिस यस्टरडे? पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कल सॉल्व किया है। 48 क्वेश्चन, यस आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 48। वही मैं सोच रहा था कि मैंने सॉल्व किया है। यस आई हैव सॉल्व दिस ऑलरेडी।
I already solved this yesterday. Oh, question number 49. क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं. आप लोगों ने लिखा था ये क्वेश्चन कल? लिखा होता तो आपको याद आता मेरे को. चलो कोई नहीं. लेट्स प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 49. A wire of length L, area A, is stretched by the load. The elongation produces L. If Y is the Young's modulus of the wire, then the force constant of the wire is. What do you mean by force constant? What do you mean by force constant? Force constant क्या होता है? Force constant concept is there for the spring. Spring के लिए होता है देखो force constant. Force constant of the spring. Spring के लिए क्यों होता है? क्योंकि spring is getting elongated. ठीक है. Suppose I consider here a spring. एक spring अगर हम consider कर रहे हैं. Suppose I consider here a spring like this. और इस स्प्रिंग के यहाँ पर कुछ मास अप्लाई किया, कुछ मास यहाँ पर हमने लगा दिया. व्हाट मास इज दैट? m. तो वेट क्या होगा उसका? सो एंड द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग. नाउ दिस स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है, इसको भी हम फोर्स कांस्टेंट कहते हैं. स्टिफनेस इज आल्सो कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट. इट इज डिनोटेड बाय k. इट इज डिनोटेड बाय k. ठीक है. एंड दिस इज नथिंग बट force per unit deformation. Force per unit deformation. Force per unit deformation. It's called as force constant. Force per unit deformation. That means total force upon total deformation. That is called as the force constant. So ये concept यहाँ पर पता होना जरूरी है. ठीक है. अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ y is equal to stress force upon area divided by strain change in the length upon original length, तो वो बन जाता है FL upon AL, isn't it? मुझे चाहिए F upon L. I want F upon L. So what is F upon L is equal to Y A upon L. That is equal to force constant. So what is the formula? What is this? Y A upon L. C is the answer. Is this clear to all? Is this okay? This was very easy actually. लेकिन आपको स्टिफनेस या फोर्स कांस्टेंट का मतलब पता होना जरूरी है. फोर्स कांस्टेंट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट डिफॉर्मेशन. Force per unit deformation. Is this clear to all? Is that okay? Well, I think it's time to take a break. We'll have the lunch break and thereafter we'll continue with maths. Is that fine? We'll resume at 3:30, 3:35. Resume करेंगे.